recording. So we will start from the lecture we have stopped last time. I will share that pattern slide to you now. Can you see all this is the pattern slide? Yes, sir. Yeah. Yes. So now also we can show you that molding sand properties. Yesterday we were discussing properties. Slide is same slide is there. Just below that I have written that properties of molding sand. Yesterday studying. So as we were discussing, flowability is one property that sand should flow in the mold so that it will go to various parts and will completely fill the cavity except pattern size. So that flowability important. Unless it flows, how can it go to the various parts and fill that molding box? Then green strength. It is the strength of the sand in green state or moist state. Means you can see the composition of what is the composition of that molding sand. That molding sand composition is you have uh, basically the silica sand grains, that is the original ingredient of that. Then you have binder, clay or binder is there. Bentonite is one very popular binder we are using, and then some part of water. So in this green so that you can form that mold. Okay. And in that moist condition also it should maintain the strength. So that is for that binder is necessary. So green strength, that is one important property. Dry strength, when it gets heated, because whenever you are pouring the metal, that metal temperature is up to 2000 degrees centigrade. So that will because of the conduction that it is directly in touch with mold, and that molding sand is going to be heated. So in the heated condition, that's a dry strength is important. It should maintain that, it should not collapse. Okay. Then hot strength, it is not only dry state, it is hot state. Hot strength means above 100 degree centigrade. ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ भी नहीं है, 2000 से वेरी क्लोज है तो इट विल गो वेरी हाई. बट by definition it is the ability of the stand above 100 degree centigrade. So it is a difference between dry strength and hot strength. Dry strength means उसका moisture निकल गया. Hot strength is above 100 degree centigrade. It should maintain its strength. Then permeability, as we were discussing yesterday, it should be permeable. All the gases, etc., entrap should not be entrapped. It should escape. Next property is refractoriness. Of course, refractoriness. It should not melt. It should be a refractory lining in the furnace. You have a sand, silica grain, and other things, bricks. Why they are using? Because that its melting point is very high, so that when the molten metal is melted, um, then that lining should not melt like that. Similarly, sand will not melt because sand melting temperature is very high. So that's why silica sand grain, that melting temperature is high. That's why refractoriness is one property. Uh, then thermal stability. Yes, due to heat it should not lose its shape. अगर उसने खुद खुद ही अपना शेप चेंज किया तो वो जो कैविटी है वो शेप चेंज करेगी, और हमको जो कास्टिंग चाहिए वो नहीं मिलेगा. So that thermal stability is also important. Adhesiveness, yes, that sand particles should be adhesive to each other, and for that this binder and clay that is mixed in that. No? Otherwise, pure silica sand grain that will not stick to each other. So that adhesiveness is necessary. तभी तो मोल्ड बनेगा ना. कोलेप्सिबिलिटी, यस, ये सब कास्टिंग होने के बाद ये सैंड को ऐसा हैमर से मार के हम चिपिंग हैमर से निकाल देते हैं. वो कोलेप्सिबल सैंड कोलेप्सिबल है, इसीलिए तो सैंड यूज करते हैं. अगर कोलेप्सिबल नहीं होता तो फिर वो कास्टिंग के साथ चिपक के रहता. इट शुड नॉट बी शुड नॉट हैव बीन सेपरेटेड
then वो नहीं चलेगा. That's why collapsibility is also important. So all these are the properties of molding sand. Okay, the exam point of view, very important question. What are necessary properties of or essential properties of molding sand? So that is the property. And this water, then this binder, the various types of binder, and silica sand grains in the ingredient of molding sand. Later on, I am going to show you a picture of molding sand, how it looks, that green sand, how it looks, etc. इंडस्ट्री के पिक्चर्स मैंने ये पीपीटी में अपने फिट किया. तो कल ये पॉइंट में हम एक दो पॉइंट अपने रह गए थे. ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया था, फ्लोएबिलिटी वगैरह. ये सब ये जो ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ, इस पे डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज इट वाज अज्यूम दैट कि इज हैविंग दैट्स व्हाई वो इतना याद नहीं रहा था. लेकिन ये जो परमेबिलिटी, रिफ्रैक्टरीनेस, ये हमने एडेजिवनेस एंड कोलेप्सिबिलिटी ये हमने डिस्कस किया था. थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी पॉइंट. see when we in the discussion we discuss that, but when it comes to highlight the point, that is the main thing that you should write in the answer paper. So that's why notes are essential, and I have made this. इसका मेरे पास पहले ये हैंड रिटन था पुराना, बाद में हमने जैसे ही वर्ड्स वगैरह ये डेवलप हो गए, तो 2005 और सॉरी 1995 में वर्ड्स पहला आया था, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे. पहले अलग सिस्टम था, देन 98 में रिवाइज हुआ, वो टाइम फिर हमने वो चालू किया, तब का ये नोट्स है. 2003 2005 के टाइम ऐसा कुछ बना है ये. तो ये अभी बच्चों को बहुत यूजफुल हो रहा है ये सब. So I will minimize this and I will again show you that PPT. Okay, pattern. So yesterday we saw for pattern, then functions of pattern we saw, then material we were discussing various types of material, and we were in types of patterns. So solid single piece pattern, then split pattern, then two pieces above parting line, below parting line. Then we have three piece pattern, multiple piece you can say, when complicated shape is there, then in one piece manufacturing of pattern is difficult. In that case, yeah, you can use this three piece pattern. Then you have loose piece pattern. Certain parts are very difficult to make using pattern, so loose pieces of that particular size are done when pattern of major portion is prepared, and the small loose piece is fitted there by some pin or what, screw. Mostly pin is used. Then after removing, after molding, this main pattern is removed, and this portion is still in the sand, so that is again removed. So this is one more example of that loose piece pattern, where this dotted shape, as we were discussing yesterday, that internal contours are difficult to form. It's possible if you want to do, you can do, but it is difficult. Externally, it is easy. So both these parts are made externally and then joined together, and that dotted shape is made. Then cope and drag pattern. Cope and drag pattern. One is cope, one is drag. Means when the pattern is done in two pieces, when one is cope and one is drag, and then they are joined together, then they are known as cope and drag pattern. Okay. Then this is cope and drag pattern. This is cope pattern, and this is drag pattern. And when this cope and drag pattern are fitted on board, then that is known as match plated pattern. मतलब एक प्लेट लेते हैं, जो कल हमने एक वीडियो देखा ना, दो दो बड़े कार्डबोर्ड थे, और वो एक पोर्शन एक पे बनाया, दूसरा दूसरे पे बनाया. दोनों कार्डबोर्ड पे में से एक जो ऊपर वाला है उसमें 4 पिन रहेगा, और वही पिन के कॉरस्पॉन्डिंग होल नीचे वाले कार्डबोर्ड पे रहेंगे. वो चारों पिन जब एक दूसरे में बैठते हैं ऊपर वाले कार्डबोर्ड के दूसरे वाले कार्डबोर्ड पे, तो पैटर्न की पोजीशन भी एक बराबर एक दूसरे के ऊपर हो जाती है. सो दिस इज व्हेन द पैटर्न साइज इज स्लाइटली बिगर, देन वी गो फॉर मैच प्लेटेड कोप एंड ड्रैग पैटर्न. मतलब प्लेट पे एक पार्ट लेते हैं और प्लेट पे दूसरा पार्ट लेते हैं, और प्लेट एक दूसरे को बराबर पोजिशनिंग करते हैं. अगर प्लेट नहीं यूज किया तो सिंपली यू विल से इट कोप एंड ड्रैग पैटर्न, and here you will see match plated cope and drag pattern or match plated pattern.
Okay, these are various types, means according to suitability of the size and shape of the pattern, we select all this. ऐसा necessary नहीं कि एक particular ही करो. You can have more than one alternative also many times. तो अभी तक जो भी हमने सीखा उसका थोड़ा सा यहाँ पे glimpse दिया है हमने. Solid pattern, split pattern, match plated pattern and cope and rack pattern. Okay, so this is that match plated pattern जो boards पे किया है. वही ये कोप एंड रैक पैटर्न, देन स्प्लिट पैटर्न, दो पार्ट में ये किया है. तो नाउ फॉलो बोर्ड पैटर्न, तो ये जनरली ऐसे थीन सेक्शन के लिए यूज होता है. ये देखो, ये थीन सेक्शन हमको बनाना है, तो इसको सुटेबल है ये फॉलो बोर्ड ये करने का. ऐसा एक ये लकड़ी का ये रहता है ना पोर्शन, मोल्ड बोर्ड, या फिर हम लोग वो प्रेस प्रेस करके लकड़ी के भूसा प्रेस करके जो वुड बनाते हैं ना, सॉफ्ट वुड, जो आपने देखा होगा बहुत सी इंडस्ट्रीज वगैरह आजकल वो बनाती है, और बाहर से फिर वो सनमाइका या तुम्हारा ये लगा के ऐसा टेबल्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है ना, सस्ता वाला टेबल आता है, लेकिन अंदर वो प्योर लकड़ी नहीं, उसका भूसा भरा रहता है. तो ये जो वुडन ये जो है पोर्शन, उसको प्रेस करके वुडन वेस्ट का जो है उससे ऐसा एक फॉलो बोर्ड तैयार करेंगे हम लोग. और वो अगर शेप आपका आया तो यू कैन प्रिपेयर थिन पैटर्न फ्रॉम दैट. इससे हम थिन पैटर्न एक तैयार कर सकते हैं. इसको इसको बाद में ये हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसके ऊपर बराबर हम लोग इसको ऐसा मैच करेंगे. तो ये फॉलो बोर्ड, तो ये जो बोर्ड है उसको फॉलो करने वाला पैटर्न, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉलो बोर्ड. और ये तभी हो सकता है जब ये थीन है. थीन है तो ही उसको फॉलो करेगा, ठीक है तो वो सुनेगा नहीं, इट विल नॉट बेंड अकॉर्डिंगली. तो उसके लिए नहीं, so that's why this is suitable for thin, यानी इन शॉर्ट ये प्रेस वर्क जैसा है थोड़ा सा. तो थीन के लिए. देन यू हैव गेटेड पैटर्न. तो गेट नाम में ही सब आता है, गेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द पैटर्न, सो दैट इज अ गेटेड पैटर्न. सो अलग अलग गेट है, मतलब क्या है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, ऐसा बहुत से छोटे छोटे पैटर्न एक साथ है. और हम यहाँ से इसको पोर करेंगे, सॉरी, ये एक बीज में हमारा ये है एक लकड़ी का पोर्शन, उसको हमने साइड में ऐसा उसको चिपका दिया है सर. ये एक पैटर्न, ये एक पैटर्न, एक पैटर्न, एक पैटर्न, मतलब छोटे साइज का अगर पैटर्न है आपका, छोटे साइज का, तो उसको एक बीज में एक सेगमेंट लेके उसको अलग अलग साइज में आप पैटर्न लगा सकते हैं. तो ये मिलके ये जो शेप हो गया अभी अपना, ये एक साथ आपने इसमें रख दिया मोल्डिंग में, तो मोर देन वन कास्टिंग यू विल गेट एट अ टाइम. मतलब ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा. और आपका ये जो है पोरिंग जो है, वो पोरिंग यहाँ से ऐसा ये होगा, तो यहाँ से इधर जाएगा मोल्टन मेटल, इधर आएगा ये, फिर ये गेट से इधर जाएगा, इधर आएगा, ये गेट से इधर जाएगा, इधर आएगा, ये गेट से इधर आएगा, इधर आएगा. तो बाद में ये सब पोर्शन निकाल के हम लोग ये जो गेट्स है ये सब कट करेंगे हैकसॉ से या फिर कोई बैंड सॉ मशीन से. तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आपको अलग अलग पैटर्न एक साथ मिल सकता है. तो मतलब वो कास्टिंग एक साथ मिल सकता है. सो दैट इज गेटेड पैटर्न, मतलब ऐसा एक पंच बनाते हैं एक साथ. ये यही सिस्टम बाद में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज किया है, वो जो मोम का बनाते हैं, तो वो प्रोसेस हम बाद में देखेंगे. तो ऐसा ग्रुप में छोटा छोटा साइज है तो एक एक करना परवड़ता है ना, छोटा छोटा पैटर्न है उसका एक एक कास्टिंग ऐसा बनाते बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए बड़े बड़े लैडल उठाना, वो मोल्टन मेटल उठाना. एक साथ ही मोल्टन मेटल पोर करके एक साथ ही उसको इस रनर से ऐसा उधर मोल्टन मेटल बहने दो और अलग अलग गेट से उसको फिल करने दो. ये तो हम यहाँ पैटर्न बना रहे हैं. ये पैटर्न जब सैंड में जाएगा तो उसकी कैविटीज बनेगी. तो कैविटीज बनने के बाद ये कैविटी से बाद में ये साइज में सब ये चला जाएगा, लेकिन ये एंटायर बंच बाहर आएगा जब सैंड कोलैप्स होगा तो. लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ ये पोर्शन, ये बीच के जो रनर्स एंड गेट्स, दिस इज नोन एज रनर, दिस आर नोन एज गेट्स. ये हमको नहीं चाहिए, तो रनर्स और गेट्स बाद में निकाल देते हैं. और वो जो वेस्ट पोर्शन है फिर रनर्स और गेट का, वो फिर से मेल्टिंग करने के लिए मेल्टिंग फर्नेस में भेजा जाता है.
और जो भी ये पैटर्न हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ मिलेंगे, उसको फिनिशिंग के लिए हम अलग अलग पोर्शन, उनको जो फिनिशिंग मेथड्स है उसमें उसको भेज देते हैं. देन यू हैव वन मोर which is sweep pattern. Sweep pattern क्या है? For large size casting in small numbers, template of wood attached to a sweep which is used. ये क्या करते हैं? लार्ज साइज कास्टिंग के लिए ये यूज होता है. तो ये एक हमारा शेल है. ओके, ये मतलब ये शेल में हम लोग सैंड वगैरह भर सकते हैं. अभी अभी इसमें कैसा है कि तुम्हारा ये पैटर्न कैसा है, देखो ये बीच में ऐसा एक स्टेम है जिसको नॉन इट इज नोन एज स्पिंडल, और ये स्पिंडल का एक बेस है, और ये तुम्हारा स्वीप है. स्वीप यानी एक ऐसा तुम्हारा पाता, पाता बोलते हैं ना, ये मिक्सर का ये रहता है ना, मिक्सर का पाता, वो ब्लेड, तो दैट इज नोन एज स्वीप, अ ब्लेड. नाउ दिस इज मूव्ड इन द सर्कुलर डायरेक्शन. तो ये जो शेप है ना, ये पूरा ये वो सैंड में बन जाएगा, बट सर्कुलर. यहाँ तो ये शेप ये हाफ क्रॉस सेक्शन है, रेडियल रेडियल क्रॉस सेक्शन. तो ये जब ऐसा घूमेगा तो यू कैन इमेजिन ये ऐसा पोर्शन, ये इधर भी ऐसा आएगा, और ये पूरा सर्कल में आ जाएगा. एंड देन you remove this portion and then fill the molten metal, and then you will get that particular shape. तो स्वीप पैटर्न ऐसा सर्कुलर पोर्शन के लिए ये बहुत यूज होता है. अगर सर्कुलर नहीं है तो फिर ये यूज नहीं होगा. स्वीप पैटर्न एक एक ऐसा एक ब्लेड लेके वो पर्टिकुलर शेप का वो पूरा घुमाते हैं और तुम्हारे इसमें इस पे अराउंड द स्पिंडल, तो वो शेप आपको तैयार होगा अराउंड द पेरीफेरी, around the periphery and also along the face, you can see here. So that is sweep pattern. कभी कभी पैटर्न शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा वो 3 पीस पैटर्न था ना, वैसा ही एक है. इसको कहेंगे हम लोग सेगमेंटेड पैटर्न. फॉर रिंग्स, व्हील रिम्स एंड लार्ज साइज गियर्स इट इज यूज. ओके, ये एक बड़ा पोर्शन है, तो उसको ये हम लोग इसको एक स्पाइडर यानी सपोर्ट हम दे देंगे ऐसा, और ये पोर्शन है अपने व्हील का. फिर ऐसा ही दूसरा लेके यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही. मतलब एक पीस में, क्योंकि बड़ा साइज का गियर अगर है आपका, बड़ा कास्टिंग है, जैसे 6-6 मीटर के बड़े बड़े रहते हैं भाई. ये आपने शुगर मिल में वगैरह देखा होगा या सीमेंट मिल में देखा होगा, तो बड़े बड़े साइज के गियर्स रहते हैं, 6-6 मीटर. यानी आप देखो कितना बड़ा हो जाएगा. आई हैव सीन इन वालचंद नगर वी यूज टू मेक मैन्युफैक्चर दिस बिग गियर. तो उसके कास्टिंग आते थे. सातारा साइड एक बड़ी फाउंड्री थी हमारी थी, कूपर इंजीनियरिंग बोलते, वालचंद नगर का सिस्टर कंसर्न था, मतलब वो गुलाब चंद सेठ जी का था. और ये हमारा ये वालचंद सेठ जी का था. तो उन हमारे सिस्टर कंसर्न से वो आते थे बड़े बड़े कास्टिंग, और बहुत बड़े साइज में. तो ये हमने बोला इसका ये कैसा करते रहे भाई आप लोग, इसका पैटर्न वगैरह. वो बोले ऐसा टुकड़े टुकड़े में रहते हैं सेगमेंटेड. तो वो वही सेम है, ये मतलब ये देखो ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, ऐसा 6 बार अगर आपने कर दिया तो आपका हो गया 60-60 डिग्री का. एक रहेगा तो 6 × 6 360 डिग्री पूरा कवर हो जाएगा. प्लस आपका ये सपोर्ट भी रहेगा बीच में, व्हाट यू कॉल आर्म, आर्म एंड रिम. तो ये तो सेगमेंटेड पैटर्न इट इज यूज फॉर wheel rim, big wheels or big large size gears as they have said. Then skeleton pattern, ये भी ऐसा ही है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो बीच में उसको सपोर्ट्स वगैरह देना है. तो यू कैन यूज स्केलेटन पैटर्न. तो उसमें वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऑयल पाइप्स, वाटर पाइप्स, पाइप बेंड्स, बॉक्सेस. तो ये शेप के लिए स्केलेटन पैटर्न. अरे कितने टाइप्स है देखो भाई, एग्जाम में देखो वो 7-8 भी आपने दिया ना, हमारे लिए सफिशिएंट है. लेकिन हमारा एज ए टीचर हमारा काम है कि सब कुछ आपको सिखाए, जो जितना मतलब हमको आता है वो 100% हम आपको दे रहे हैं. जितना भी टाइप्स है वगैरह ये सब आपको सबके सब देना, ये आपके टाइम में बैठेगा भी नहीं, अपना जो एग्जाम टाइम वगैरह 7-8 भी आपने ये किए सफिशिएंट. दैट आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, बिकॉज उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं. बट उसमें से कोई भी करो, ओपन चॉइस इज गिवन टू, इज अ बिग शोरूम ऑफ पैटर्न. देखो ये स्केलेटन पैटर्न का ये 3D ये जो हमने ये किया ना,
इसका ये इसके लिए ये बेंड शेप करके वगैरह ये सब आपको करना पड़ता है। देन वन मोर इज शेल पैटर्न, शेल टाइप है और वो भी बेंट है पीस। तो पाइपलाइन का बेंट ये वगैरह है, जो वॉल्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसके जो अंदर के शेप्स वगैरह, तो उसको ये शेप शेल टाइप पैटर्न। ओके, तो ये सब पैटर्न है। और एक है लेफ्ट एंड राइट पैटर्न, एक रह गया बीच में, बिल्टअप पैटर्न। तो बिल्टअप पैटर्न ऐसा है कि आपको मतलब अलग अलग सेगमेंट में, ये देखो यहाँ भी बना है, अलग अलग सेगमेंट में बना है। ये लकड़ी के प्लेट्स लगा के इसको बनाया है, ऐसा अलग 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 बना है। बाद में इसको स्क्रैपिंग करते हैं एकदम फिनिशिंग के लिए। अलग अलग इरेगुलर शेप है, देखो ये, समझो तुम्हारा इसका ही ले लो ना बॉक्स ना, तुम्हारा कार्बोरेटर बॉक्स वगैरह अलग अलग शेप है, कर्वेचर है इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, इज नॉट इजी टू मेक। सो in such cases you make by different plates, you can use that. Okay, so that is built up pattern. Then you have left and right pattern. एक ऐसा ब्रैकेट टाइप पैटर्न एक साइड में बना दिया, तो वो दूसरा ऐसा बनाएंगे कि वो उसकी साइड एग्जैक्टली दूसरे साइड में रहेगी। तो ये दोनों बाद में जोड़ेंगे तो ये ऐसा पोर्शन आपका तैयार होगा। तो ये लेफ्ट एंड राइट पैटर्न एक साथ आपको जोड़ेंगे तो आपका दोनों साइड में उसका ओपनिंग तैयार होगा। चाहे तो आप राइट वाला रख सकते हैं, लेफ्ट वाला रख सकते हैं, एज पर यूज, चाहे तो जोड़ सकते हैं दोनों। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। और ये किसके लिए काम है, देखो ये कॉमन आपका ये पास हो रहा है उसमें से, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में बाद में ये शाफ्ट घूम रहा है, ये शाफ्ट घूम रहा है तो ये जैसे ये बेरिंग ब्लॉक भी उसके साथ बना है। ये थोड़ा सा हब जरा ज़्यादा थिकनेस रहता है इसका फॉर स्ट्रेंथनिंग। एंड देन दिस इज नथिंग बट दैट व्हाट यू कॉल ऑर्थोग्राफिक में हम लोग बनाते हैं ना, रिब 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 और नीचे का बॉटम प्लेट, और इसमें दो होल इसमें रहेगा, इसमें दो होल रहेगा, एंड दैट विल बी अटैच्ड टू दैट the station there, so that it is rigidly firmly and exactly that center should match, so that this axis will be exactly parallel to the surface where it is joined. So this is what happened. Your network is causing poor call quality. What is happening? बच्चों तुमको सुनने को आ रहा है? Just tell me. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. हेलो, यस सर। आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, क्योंकि इधर मेरे को ऐसा एक नोटिस आया कि तुम वॉइस ये मतलब ये हो रहा है बोल के, ऐसा मेरे को एक मेरे पीसी पे इस पे ये आया लैपटॉप पे। आर यू गेटिंग द थिंग ना? हाँ, यू स्पीक, somebody प्लीज स्पीक। Yes, sir. हाँ, अभी ये एक ऐसा ही है कि बीच बीच में लाइट कल बहुत गया, तो ये मैं एक बीच में एक अटेंडेंस ले लेता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों का बीच में एक अटेंडेंस लेना जरूरी है, तो नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। शो पार्टिसिपेंट बोला, कितने पार्टिसिपेंट है बाबा? 60 पार्टिसिपेंट है। अभी मैं एक अटेंडेंस ले लेता हूँ इन बिटवीन। तो ये अपना अटेंडेंस डाउनलोड में हो गया होगा। ओके, सो अगेन वी विल कम टू आवर that presentation. इधर गया प्रेजेंटेशन भाई, हाँ गया, लेफ्ट एंड राइट पैटर्न। ओके, तो हम लोग अभी जाएंगे what are various factors on which these types of patterns depend. Selection of pattern. So these are various factors, you can read of your own. ये मोल्डिंग का ये जो रेड लाइन आता है, ये इसलिए आता है कि ये अमेरिकन सिस्टम में मोल्डिंग का स्पेलिंग MOLDING वो यू निकल दिया, तो इसको इग्नोर करना है एक्चुअली। तो आप कोई भी स्पेलिंग लिखो, MOLDING लिखो, MOULD, कोई भी लिखो, इससे होता है, ये इग्नोर ऑल करेंगे हम लोग इसको। So these are various factors we have already discussed in our discussion up till now. इसका एक समरी बनाया है इधर। Go to next slide now. पैटर्न हो गया। और पैटर्न अलाउंसेस, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, अलग अलग पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न बनाते टाइम अगर एग्जैक्ट साइज का पैटर्न बनाया जो कास्टिंग को चाहिए, मतलब कास्टिंग चाहिए मतलब क्या है, हमको एक कास्टिंग का ड्राइंग देंगे
डिजाइनर कि ये ड्राइंग ये साइज का हमको कास्टिंग चाहिए, सो दैट बाद में उसका मशीनिंग करके हम लोग एक पार्ट बनाने वाले हैं, तो हमको ये साइज का कास्टिंग चाहिए। एंड दे आर गिविंग दैट ओपन टॉलरेंस, इतना स्ट्रिंजेंट टॉलरेंस नहीं रहता है कास्टिंग के लिए, जैसा मशीनिंग पे रहता है वैसा ओपन टॉलरेंस रहता है, थोड़ा सा रफ ये साइज में चाहिए, इतना बाई इतना बाई इतना और बीच के जो भी कुछ फंक्शनल पार्ट्स है उसके डायमीटर, उसके बोर साइज, ये सब हमको चाहिए, थिकनेस, ये सब जो फंक्शनल डायमेंशन है जो दूसरे में फिट होने वाला है, दैट शुड बी एक्यूरेट। तो ठीक है, अगर पैटर्न वाले के पास वहाँ आ गया तो पैटर्न वाला सोचता है कि ठीक है हम लोग अभी इसका हम पैटर्न बनाना चालू करेंगे। फर्स्ट ही सिलेक्ट्स द मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोस फैक्टर्स जस्ट नाउ वी डिस्कस, देन वो बोलेगा अभी इसके लिए अलाउंस रखना चाहिए, तो वो पहले देखता है कि कौन सा मटेरियल ये होने वाला है, पोर होने वाला है, मतलब स्टील होने वाला है क्या, एल्यूमिनियम का है या वाइट मेटल का है क्या और कोई है, तो क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टी है और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन उसके ऊपर अपने अलाउंसेस डिपेंड है। तो इसके हमारे पास टेबल रहता है कि कौन से मटेरियल के लिए कितने अलाउंस लेने का वगैरह। तो स्टील के लिए जो भी कुछ स्टैंडर्ड्स है वो आप थोड़ा सा याद रखो, अगर एग्जाम में हम लोग देते हैं तो वो लेने का, अगर हम दिया भी नहीं तो यू शुड हैव योर ओन 2-3 स्टैंडर्ड फिगर फॉर स्टील। सपोज वी आर पोरिंग द स्टील, तो स्टील का कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस कितना लेना है, उसके लिए टेपर अलाउंस कितना लेना है, दैट फिगर यू शुड हैव। सो व्हाट आर वेरियस पैटर्न अलाउंसेस, here we are writing there are some allowances, they are responsible for difference in the dimension of between casting and pattern। तो ये अलाउंसेस कौन से है, तो पहला वाला अलाउंस है श्रिंकेज अलाउंस। why shrinkage allowance is necessary? As I told you, so during solidification it shrinks. In heated condition of temperature is up to 2000, so in expansion it will take bigger shape, and whenever it is cooling it will shrink. So in shrinkage it definitely going to be less। तो ये श्रिंकेज अलाउंस हमको ऐसा देना पड़ेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कास्टिंग मतलब पैटर्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा बड़ा पैटर्न बनाएगा तो कैविटी भी ज़रा ज़्यादा बड़ी होगी, और उसमें अगर हमने फिर मोल्टन मेटल डाला तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा अपना कास्टिंग थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब वो तुरंत तो उसी साइज का होगा, लेकिन उसको जब कूल करेंगे तो थोड़ा सा वो छोटे साइज का हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पैटर्न थोड़ा सा बड़ा लिया है तो हमारा जो श्रिंक होके होने वाला जो कास्टिंग है वो भी करेक्ट साइज का हो जाएगा। उसमें एक अलाउंस तो श्रिंकेज अलाउंस है। तो ये पहला अपना श्रिंकेज अलाउंस है, तो एंड श्रिंकेज अलाउंस डिपेंड अपॉन ऑल दीज थिंग्स। Here is something missing, it should be mold, resistance of mold to shrinkage। Let's save this, टाइप करते करते रह गया था मेरा। molding materials used, then method of molding used, pouring temperature of the molten metal, like that. These are various considerations। Now it is shown here, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या, देखो बच्चों थोड़ा सा पेंट आई है, लेकिन यू कैन सी श्रिंकेज की वजह से क्या क्या होता है। देखो श्रिंकेज कैविटी भी बन सकता है, तो सॉलिड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर आता है, साइड का पोर्शन थोड़ा सा अंदर आ जाता है। तो ये सब डायमेंशन के लिए आपको सब ये करना पड़ेगा आपको, दैट शुड बी एडेड ऑन द पैटर्न। पैटर्न थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा वो साइज का। आप बोलेंगे इसका क्या करेंगे, ये अगर ऐसा आ रहा है
तो इधर की साइज भी आप थोड़ा सी बड़ी बड़ी कर लो। ये जो ऊपर जो रहने वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ओवर साइज कर लो, कि ताकि बाद में ये मशीनिंग करके निकल जाए। क्योंकि ये अगर अंदर रह गया ऐसा पोर्शन, श्रिंकेज कैविटी, तो कास्टिंग में टर्न लेटर ऑन इफ इट कम्स अंडर टेंशन। So that is the shrinkage cavity which is coming. This is the molten metal shown here. Why that molten metal is shown here? Here it is molten and it is here frozen. क्योंकि बाहर जो है वो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में आ जाता है ना, आउटसाइड पोर्शन, तो बाहर से कूल होना चालू होता है। इट इज जस्ट लाइक अर्थ यस्टरडे आई टोल्ड, अर्थ कोर इज स्टिल इन हीटेड कंडीशन। यू हैव टू बिलीव। अब किसी ने देखा नहीं अभी, क्योंकि कोई देखने जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अर्थ कोर, अर्थ इनर कोर, आउटर कोर, दे आर सेइंग, देन वी आर इन दैट आउटर जोन विच इज फुल्ली कोल्ड। अभी तो इधर खेती वेती हो रही, लोग रह रहे हैं। बाहर बाद में है ना वो सियाल, साइमा, मैंटल, आपने सीखा होगा ना जियोलॉजी या किधर जियोग्राफी में, सेम है। तो अर्थ का क्या है बेसिकली, ये मेटल नहीं है, ये स्टोन वगैरह है जिसका 1000 के नीचे मेल्टिंग टेम्परेचर है, 800 1000 के बीच में ये सब है। लेकिन वो अंदर अभी भी गर्म है, अर्थ अर्थ कोर अभी भी गर्म है और बाहर सब ठंडा हो गया। तो सिमिलरली कास्टिंग में बाहर का सब ठंडा होता है, हमको दिखता भी नहीं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर अभी वो हीटेड कंडीशन में है। तो ये जो है तो उसका क्या होता है कि बाद में थोड़ा सा श्रिंक होके इतने पोर्शन में वो ड्यू टू श्रिंकेज ऐसा ओपन रहने का चांस है। तो थोड़ा सा आप इसको अलाउंस दे दो मशीनिंग का, कि वो बाहर के पोर्शन में रह जाए और बाद में उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, योर कास्टिंग डिजाइन शुड बी सच दैट कि दिस शुड नॉट हैपन। सो बहुत बार तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, चिल्स वगैरह ऐसा यूज करते हैं हम लोग। चिल्स यानी ये जो है मोल्टन मेटल, उसके नज़दीक में एक मेटल पीस दूसरा भी एक यूज कर सकते हैं, ताकि वो यूनिफॉर्म कूलिंग हो जाए। ऐसा नहीं कि सडन कूलिंग हो जाए या सडनली श्रिंक हो जाए, कूलिंग विल बी यूनिफॉर्म। तो वो यूनिफॉर्म कूलिंग के भी कुछ मेथड्स हैं। तो कभी कभी ये कास्टिंग स्लोली कूल करते हैं इन द फर्नेस वगैरह, तो ये ऐसा कैविटी वगैरह ज़्यादा न बने। और एकदम सडनली कूल होने से क्या होता है कि यूर एंट्रैप्ड गैसेस में नॉट फाइंड टाइम टू कम आउट, और वो बाद में इम्प्योरिटीज चालू हो जाए अंदर, रेसिडुअल्स पोरोसिटी। तो इट शुड बी स्लोली कूल। तो कभी कभी ऐसे फर्नेसेस भी रहते हैं कि जहाँ पे आप स्लोली कूल कर सकते हैं इसको। तो दैट कभी कभी एक सोकिंग पीरियड रहता है, थोड़े से टाइम के लिए उसको वो टेम्परेचर में रखो, फिर नीचे लाओ, फिर नीचे लाओ, फिर नीचे लाओ, ऐसा स्लोली ये भी कर सकते हैं। सो दीज आर वेरियस थिंग। बाद में हीट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा अगर कुछ हो गया तो बाद में उसको रीहीट करेंगे और उसका टेम्परेचर फिर से उसको स्लोली कूलिंग करेंगे। So various types of heat treatments are there: annealing, normalizing, tempering, like that. Various heat treatments are there that you will study in metallurgy, engineering materials, and you are studying somewhere. No, in I think Lukman sir is teaching you in metallurgy, so that there you will see various heat treatments, etc. So that is about shrinkage. Second is draft or taper allows. Taper allows. Whenever you are lifting the material, your pattern, जैसे आपने एक पैटर्न आपने रख दिया, ये एक पैटर्न आपने सिलेंडर में ऐसा रख दिया, तो और हमने आजू बाजू में पूरी सैंड वगैरह डाल के रैम किया। अभी इसको हमको इजीली निकालना है, इसको हमको इजीली निकालना है। अगर इजीली निकाल नहीं सके तो हमको उसको जबरदस्ती थोड़ा खींचना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि आपका मोल्ड वगैरह डैमेज हो जाए, तो उसका जो शेप है आपका डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए इसको इजीली निकालने के लिए हमको टेपर चाहिए, थोड़ा सा टेपर चाहिए, ज़्यादा नहीं, ऐसा ग्लास टाइप, मतलब ये फिर ये ऐसा होगा। हाँ, ये एकदम परफेक्टली सिलेंडर न होते हुए ये ऐसा होगा, सो दैट इट विल बी रिमूव। इसको उल्टा मत करो, उल्टा करेगा तो अंदर ही फंसेगा। मीन्स आउटसाइड एरिया विच इज having slightly more diameter than inside area। तो ये कैसा होगा, आपको ये टेपर एंगल फिक्स करना पड़ेगा। हाउ दैट टेपर एंगल इज मेंशन, इट इज 1/100, मतलब 100 mm लेंथ जाने के बाद 1 mm डिपार्चर।
इसका मतलब ये डायमीटर 2 mm डिपार्चर, समझ गए? मतलब 100 mm लेंथ है और नीचे का डायमीटर अगर 50 है तो आपका ऊपर का डायमीटर होगा 52 mm। आप समझ गए? मतलब 1 in 100। तो रेडियस वाइज अगर आपने देखा tan थीटा आएगा ना, तो 1 mm in 100, 100 mm जाने के बाद 1, so tan theta is 1 upon 100, so that much is the angle, that is Presley. So they don't mention angle because it is very small. So they mention 1 in 100, 1 in 80, 1 in 120, like that. It depends on various material which is to be molded. So that is given here. It depends on, you can see here. Okay, you just spend some time. I have given some points here. Exam point of view, all these are very important. So you spare your time. I'm going to give you PDF of this when I complete all this. First chapter, I will give you that PDF. That draft, it is also known as draft or taper allowance. First was linkage allowance, and now this is draft allowance. Now we will go ahead. ये जो ड्राफ्ट अनाउंस है इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ बच्चों। एकदम बड़ा हो गया, आपको स्क्रीन से ही निकल गया। हाँ, दिस इज गुड। देखो बच्चों, अभी ये शेप का हमको चाहिए पैटर्न, ये शेप का, और एकदम हमने स्ट्रेट रखा तो ये डैमेज कॉज्ड एट द एज, ऐसा निकलते टाइम वो धक्का लगेगा शार्प एज को, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस साइज को हमको टेपर करना जरूरी है। अभी थोड़ा सा इधर एग्जैगरेटेड टेपर दिया है ताकि आप लोगों को समझे। ये इतना नहीं रहता है, बहुत थोड़ा सा रहता है। 100 mm में 1 mm इधर वो डिपार्चर, ऐसा बेयर आई से आपको दिखेगा भी नहीं कि ये ऐसा। मेजर जब तक नहीं करेंगे तब तो आपको दिखेगा भी नहीं कि इतना है। जितना नीचे उतना सेम ही लगेगा आपको, थोड़ा सा टेपर ताकि वो इजीली निकले। So draft or taper, that extra material provided on the pattern on the top side. तो बनाते टाइम में पैटर्न ऐसा बनाना चाहिए। दिस इज मोल्डिंग बॉक्स, और ये आपका सैंड है जो रैम किया हुआ, इजी निकलने के लिए पैटर्न। सो टेपर ऑन एक्सटर्नल सरफेस आर 10 to 25 मिलीमीटर पर मीटर। 1 मीटर में इतना टेपर आपको दिया है, 10 to 25 mm तक, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया है आपको। देन टेपर ऑफ इंटरनल सरफेस, ऐसा अगर इंटरनल भी कुछ आपका मामला है, ऐसा है ओके, इधर भी अगर कुछ होगा, ये पैटर्न ऐसा हो के उसका अंदर भी कुछ कैविटी वगैरह रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका ज़्यादा अलाउंस देना पड़ेगा आपको। सो 40 to 65 mm पर मीटर है, क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो निकालते टाइम डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको मतलब ये this one is like this, and again here somewhere there is inside some internal taper, then that more allowance should be given because it is intricacy again, it is complicated. So pattern making is not a easy job, it is a skillful job, means थोड़ी कलाकारी लगती है, अनुभव चाहिए, नहीं तो हम जैसा कुछ करने को जाएगा इमीडिएटली तो सिंपल पैटर्न, सिलेंड्रिकल पैटर्न, रेक्टेंगल ये बनाने का वो तो हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड शेप में जब जाएगा तो उसका स्किल लगता ही है। आपने ये पैटर्न बनाने का सबसे इजी तो हमने डे टू डे लाइफ में गणपति का देखा है ना। गणपति का जो रहता है वो एक मोल्ड रहता है, वो पहले बनाता है, और एक बार वो मोल्ड बन गया तो उसका फिर वो मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने मूर्ति बनते हैं, फिर वो ऐसा लाइन में लगाता है ऐसा सब, और बाद में वो पेंटिंग वगैरह करने के बाद इट बिकम्स गणपति गणेशा। बट उसके पीछे वो जो कला है वो है मेनली वो पैटर्न मेकर की। तो पैटर्न मेकर को उसका वो सोंड, उसके वो दांत जो बैठा है, वो पेट का डिफरेंट शेप्स, वो करने में, वो कर्वेचर है ना, वो बनाना इतना इजी नहीं है। तो वो मोल्ड बनाना यानी बहुत बड़ी कलाकारी। तो इनफैक्ट जो गणपति हम लोग बाहर देखते हैं, दे आर नथिंग बट कास्टिंग,
but it is not made of metal, but it is made of clay and plaster of Paris in short. तो ये है आपका टेपर का, ये भी और एक टेपर का एग्जांपल देखो। ये बहुत ही छोटा फॉन्ट है, ऐसा क्यों दिख रहा है भाई, तो कुछ चांस ही नहीं दिखने का। ये स्लाइड मैंने फिगर्स के लिए लिए है, क्या लिखा है वो दिखाई दिया नहीं दिया गया। ठीक, अगर यहाँ इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है, ये मैंने इंटरनेट से ली है फिगर, कि अगर ये स्ट्रेट है तो वो निकलते टाइम साइड के वॉल्स को प्रेशर आएगा और ऐसा क्रैक जाके मोल्ड टूटने का चांस है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर वन, इसको आप क्या करो, इसको आप टेपर दे दो, so that it will be easily removed, that they want to show. And the same figure here it is then written, if you want to give that taper, then these are the some of the allowances they are saying. ये भी एक है देखो, ड्राफ्ट एंगल है, ये टाइप का शेप है, तो ये है, तो ये सब स्ट्रेट पीसेस है ना, इसके बजाय थोड़ा सा टेपर आपको देना जरूरी है। तो टेपर एग्जाम्पल है ये सब। सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट। द सेम थिंग इज गिवन इन हजरत अवजरी आल्सो, लेकिन अब हजरत अवजरी लाऊं कहाँ से यहाँ, तो ये आपके लिए मैंने ये कोरोना पीरियड में थोड़ा सा नोट्स तैयार किया। द सेम थिंग यू विल फाइंड इन हजरत अवजरी वॉल्यूम 1, distortion allowance, this is one. Third allowance, distortion allowance. So this, what happens is, when you know what is foundry, basically you are pouring the metal, and it is suddenly cooled in still air. So due to sudden heating and cooling, distortion takes place. Distortion is a property, distortion of warping or warping takes place. तो जो शेप हमको चाहिए वो शेप हमको नहीं मिलता है ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमको ऐसा यू शेप का एक ये चाहिए, अभी इस कास्टिंग में ऐसा है कि ये पोर्शन को तो सपोर्ट है एक दूसरे का, लेकिन ये पोर्शन फ्री है, ये पोर्शन फ्री है, तो ये डिस्टॉर्शन से जो रेसिडुअल स्ट्रेस जो तैयार होगा वो स्ट्रेस बाहर आने की कोशिश करेगा इधर से उधर से, ये एरिया में तो उसका कुछ चलेगा नहीं क्योंकि ये सब एक दूसरे को परफेक्टली बाउंड है इज, लेकिन ये जो है ये अलग अलग है, ये यूनाइटेड फैमिली में है, तो इसको कोई बाका नहीं कर पाएगा, ये अलग अलग रह रहे हैं, तो इसको मारो, ऐसा है ना, ये इसको ये इंटरनल स्ट्रेस इसको मार दो, इसको जो भी करना है करो, तो वो ये तबाह होगा, ये तबाह होगा, कैसा तबाह होगा, there is a chance that this will go in this direction after pouring the molten metal, ऐसा वाइड होने का चांस है। अब क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, तो जैसे माँ बाप बोलते हैं ना यार अकेला रह रहा है थोड़ा बच के रहो, दुनिया बहुत जमाना खराब है, यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ। सिमिलर है भाई, कास्टिंग एक बार हमने पैटर्न तैयार किया और मोल्टन मेटल डालने के बाद हम हाथ तो नहीं डाल सकते, उसको खींच के नहीं रख सकते, अपने हाथ जलेगा। तो ये मोल्ड मेकिंग और पैटर्न मेकिंग का माँ बाप जैसा ही हाल होता है, क्या करेंगे भाई, अभी कास्टिंग तो हमको ये शेप का चाहिए और एंड ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन अलाउंस इट इज बिकमिंग, पहले ही थोड़ा केयर ले लेंगे, क्या करेंगे, इसको ही हम लोग पहले प्री बेंड करेंगे, ऐसा मतलब ये अलाउंस हम कैसा देंगे, इसको थोड़ा डिस्टॉर्शन जिस डायरेक्शन में होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले ही उसको शेप बना के रखेंगे। नाउ हियर इट मे लुक एग्जैगरेटेड, लेकिन उसके एंगल्स वगैरह वो भी फिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ योर मोल्टन मेटल, तो ऐसा प्री बेंड हम करके रखेंगे। अब ये टाइप का अगर आपका शेप है पैटर्न का और उसमें हम मोल्टन मेटल डालते हैं, वो तो अपना काम करेगा ही, उसको ये करने का बाहर की तरफ, तो होने दो ना, बाहर की तरफ आके ऐसा होगा, होने दो, वो उसको अपना प्रॉपर्टी, उसको अपना काम करने दो,
न्यूसेंस लोगों को तो दगड़ फेंक करने दो, ये करने दो, वी हैव टू टेक केयर आवरसेल्फ। तो भाई ठीक है, ये ऐसा पहले बनाया, बाद में वो जो डिस्टॉर्शन वार्पिंग जो भी होने वाला है सडन हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से वो ऐसा होगा। So that is pre-bending of the pattern is essential. So that distortion allowance is given already on the pattern. Now again it depend upon shape. अगर ऐसा ही पोर्शन इधर भी पैक है तो करने की जरूरत ही नहीं हमको। कोई ओपन पोर्शन है जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ, तो उसको हमको वो कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज गिवन वर्कपीस डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस एंड मेथड ऑफ कास्टिंग एंड इट इज लाइक दैट इट इज गिवन। बच्चों अपना टाइम कब तक है रे? 9:30 10:30। तुमको अगला लेक्चर है ना? हेलो Yes, sir. स्टॉप हियर बिकॉज 10 सवा 10 को हमको रुकने को बोला था। अगला अगला एक है वो खाली मैं आपको, हाँ, ये डिस्टॉर्शन का ये भी एक दिखाता हूँ। ये देखो, समझो ऐसा एक आई शेप है, तो ये देखो, ये ऐसा ऐसा होता है ये ना, हाँ, तो ये ऐसा डिस्टॉर्ट होता है ऐसा। तो ये बनाते टाइम में पैटर्न ऐसा बना, तो ये डिस्टॉर्ट होने के बाद ऐसा स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न बनेगा तो फिर वह ऐसा होगा ओपन साइड में, क्योंकि इसको नीचे से सपोर्ट है, उसको ये साइड को कुछ करने नहीं देगा। जो भी कुछ डिस्टॉर्ट होगा वो ओपन पोर्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले ही थोड़ा सा प्री बेंड करेंगे। सिमिलरली ये हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो मोल्टन मेटल पोर करने के बाद ऐसा होगा। तो थोड़ा ऐसा प्री बेंड पहले ही कर लो पैटर्न को, तो बाद में जो भी कुछ होगा वो ऐसा होगा। So this is a very nice cambered pattern बोलते हैं। Cambered, what is camber? Cambered means bending. This camber of pattern, camber of rolling, later on it is very popular concept. Roller जो rolling में से रोल में से जाता है ना, ये रोल इन रोलिंग प्रोसेस, तो उसको भी थोड़ा सा कैम्बर देते हैं हम लोग। तो ये कैम्बर दैट टाइम इज नथिंग बट कर्वेचर। सर वन क्वेरी, सर कितना कैम्बर करना है, कैसे पता चलता है? नहीं, वो अलाउंस कैम्बर अलाउंस, दैट्स व्हाट इज एक्सपीरियंस ना बाबा। डिपेंड अगेन ऑन मटेरियल। जो कोई मटेरियल ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है तो उसको कैम्बर ज्यादा देना पड़ेगा आपको। सो दैट डिपेंड अपॉन, तो इसके लिए चार्ट्स है भाई। ये वो 1 या 2 दिन का काम नहीं, लोगों ने सालों से एक्सपेरिमेंट करके इसके चार्ट्स बनाए। और एंड आल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कास्टिंग, क्योंकि जितना मोल्टन मटेरियल तुम पोर करोगे उतनी हीट ज्यादा, जितना स्टॉक मतलब तुम ये करो तो उतना कैम्बर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एंड अगेन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ओपन टाइप जिधर है ज्यादा, मतलब जैसा मैंने वो पहले वाला एग्जांपल बताया कि ऐसा ऐसा क्लोज्ड पोर्शन हर जगह रहेगा तो उसको कैम्बर देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये पोर्शन एक दूसरे के साथ सपोर्ट में और ये ओपन है, तो ऐसे केसेस में आपको कैम्बर ज्यादा देना पड़ेगा। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स देयर, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन वार्पेज डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर्स। ओके, सो दैट इज गिवन। ये अलग अलग एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ जो कैम्बर अलाउंस किया। अगला है मशीनिंग अलाउंस, को बाद में देखेंगे हम लोग अगले टाइम। ओके, देन टुडे वी विल स्टॉप हियर and in the next lecture we will continue with the same slide we will continue. Okay. So now again I will take one attendance. Okay, attendance is taken. चलो बच्चों, फिर thank you very much. We will continue in the next lecture. The same thing we will go on continue. Okay, it's quite interesting, don't miss. आज कितना 61 बच्चे हैं और बाकी के 3-4 बच्चे क्यों नहीं आए, उनको जरा बोलो कि भाई आ जाओ, उनका ही फायदा होगा, मेरा क्या है भाई। ओके, चलो। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So if you want to speak to each other, मैं 2-4 मिनट ओपन रखूंगा। अगर आपको जाना है तो बंद करूँ क्या? वो बोलो, मैं 1 मिनट रखूंगा। आपके किसी को बात करनी है एक दूसरे के साथ, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं अभी। ये बहाने लोग कम से कम एक साथ आ रहे हैं। अगर किसी को मिलना है, आई एम स्टॉपिंग माई दिस ऑल्सो, दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो नाउ। एनीबडी वांट टू टॉक टू मी? ऐसा कुछ नहीं ना? करता हूँ बंद। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू।